Hello students, welcome to examstore.com. This is Uttam, and here the topic of the day which we are going to discuss is the relationship between the roots. In the previous lecture we have left in the mid, that is about nature of roots, तो उससे हमने पढ़ लिया था वैसे. And I even told you, if you have not watched part 1, part 2 and part 3, please go and watch those videos, because those videos are being designed just for your competitions. Yes, CBSE as well. Okay, so many previous year questions we are discussing. The format we are following is that one video, then questions of that video, then second video, then questions of video, concept plus question. In the last, we'll be making PYQs of all the previous years of all the exams, like some of main exams like your JEE and your KPPY and TSC itself. Okay, so the manner we are going for following, and if you have not subscribed our channel, please do that, because we are delivering the best we can. And do follow our telegram channel, that is t.me/examsroad, for short tricks, tips related videos. And since we are working 0% investment, so I request you, please do subscribe so that we can make a better version of ours and you as well. Okay, so let's not waste time. Okay, let's discuss the topic. So what I have taught you in the very previous lecture was, let's firstly talk about that. That is, if I told you D डिस्क्रिमिनेंट की बातें कर रहे थे हम लोग. सो केसेस वी हैव टेकन, लाइक एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. दैट इज, इफ योर डी इज ग्रेटर देन जीरो, so there are two roots exist. First is, it's if it is a perfect square, if it's a perfect square. So what will happen अगर perfect square होगा? If it will be a perfect square, then real and rational रूट्स मिलेंगे हमको. ठीक है. एंड इफ इट इज डी इज, अगर हम लोगों को नॉन परफेक्ट स्क्वायर मिला, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 3 हो गया, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 81 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो सॉरी 41, ऐसे टाइप के नंबर्स मिलेंगे विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. सो हमको रूट्स जो मिलेंगे वो रियल मिलेंगे, बट सिंस डी इज ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव होगा, तो रियल तो हमको मिलेगा ही. तो रियल मिलेंगे एंड इरेशनल मिलेंगे. राइट, सो रियल और इरेशनल मिलेंगे हमको. तो ये चीज़ें होंगी फॉलो. अब रियल इरेशनल बोले तो, एक अगर तुमको पता होगा दिस इज 2 माइनस रूट 3, तो यू मस्ट बी अवेयर कि अगला वाला जो होगा दैट इज, let's take some example. For example, I'm taking root 3 1 minus root 3. ठीक है. so you know कि अगला वाला जो एग्जिस्ट करेगा दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस रूट 3 1 प्लस रूट 3. राइट. सो इसका कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेगा. बेसिकली इसका जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू कि इरेशनल का हमेशा नेगेटिव होना चाहिए. अगर ये पॉजिटिव दिया होता तो इसका कॉन्जुगेट ये होता और इसका कॉन्जुगेट ये है. ठीक है. ये हैव डिस्कस डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो. अगर हम बात करें डी ग्रेटर देन जीरो पे, तो हमको एक वो भी मिलता है क्या, डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी मिलते हैं हमको. सो दैट वी हैव डिस्कस्ड. और फिर हमने केस 3 भी पढ़ा था. केस 3 वाज अबाउट टी इज लेस देन जीरो. ठीक है. नहीं, डी लेस देन जीरो तो बाद में लेते हैं. चलो पहले हमने पढ़ा था डी इज इक्वल्स टू जीरो, तो हमको इक्वल एंड रियल रूट्स मिले थे. ठीक है. सो वी हैव गॉट टू नो रियल एंड इक्वल रूट्स मिले थे. और अगर डी लेस देन जीरो की बात करें, केस 4 दैट इज लेस देन जीरो, तो हमको कॉन्जुगेट मिले थे. रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट. कॉम्प्लेक्स होंगे और कॉन्जुगेट होंगे. दैट इज अल्फा प्लस आयोटा बी एंड अल्फा minus iota b. And you know iota is our, like I told you, complex number में हम पढ़ने वाला iota is root minus 1. this is what we have studied so far. right, इतनी बातें हमने कर ली थी. ठीक है. and I have even told you
कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कैन यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन रूट इज योर रियल, रियल बोले तो मतलब इट इज रियल, मतलब इमेजिनरी रूट नहीं है, but at the same time other root of that equation, quadratic have two roots, so other root can have imaginary, and I have stated some example also. You can just go in the previous video and do watch that, so that's not much of duration, it is going to be a bit longer, so just, and yeah, please do make notes of like every question we are transferring here, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उसमें क्विजेज और कॉम्पिटिशन्स वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड सून वी आर गोइंग टू लॉन्च ऐप एज वेल, तो उसमें लाइक मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, सो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। लाइक नाउ लेट्स डिस्कस सम की कॉन्सेप्ट्स। लेट्स गो विद एग्जांपल नंबर 1। ओके, example 1 is if I have taken some quadratic equation to x square plus 3x minus 4 equals to 0. You know, here you can compare a is equals to 2, b is equals to 3, c is equals to minus 4. Yeah. So what is my question? My question is किसके रूट्स निकालने हैं, रियल हैं, whether it has real, नॉन रियल और imaginary or none of these. Right. So ये question वीडियो पॉज करके करना, right? Now let's get to the answer. Okay. अभी सबसे पहला काम, हमको ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, ठीक है, और हमसे रूट्स के बारे में पूछा हो, ठीक है, सबसे पहले दिमाग में d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही चलना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो b इज योर व्हाट 3 9 माइनस 4 2 इंटू माइनस 4, दैट इज योर राइट इट 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा 32 and minus 32 plus 32, 9 plus 32 is your 41, right? So 41 is your like discriminant. You know this 41 is our discriminant and this d is greater than 0, but it is not a perfect square, right? Perfect square नहीं है, तो इसके वजह से हमको रूट्स जो मिलेंगे, so roots are real and irrational. ग्रेटर देन 0 है तो रियल तो हमको मिलेगा ही, पर परफेक्ट स्क्वायर में रियल मिलता है और इसमें हमको इरेशनल, ठीक है, रियल और इरेशनल, राइट। सो रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, ठीक है, दिस इज वी नो। अभी व्हाट इज द रूट, सो व्हाट विल बी द रूट निकाल लेते हैं। ओके, roots, what will be the roots? X is equals to रियल है, इसका यही ऑप्शन होगा वैसे, लेकिन रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स क्या हो गए, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 41 अपॉन 2 इंटू 2 4। ओके, तो 8 मिल जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 41, तो उसका दूसरा कॉन्जुगेट होगा, राइट। ओके, 3 माइनस रूट 41, -3 माइनस रूट 41, ओके, ठीक है। हमेशा यहाँ पे इसको देखना है तुमको, दूसरे का कॉन्जुगेट निकालते टाइम इसमें नेगेटिव इरेशनल वैल्यू में नेगेटिव साइन आना चाहिए, ओके ओके। चलो, दिस इज समथिंग वी हैव गॉट टू नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ बेसिक थिंग्स। सिमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है? सो फॉर सिमेट्रिक इक्वेशन, सिमेट्रिक इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन मिले, मतलब जनरली क्वेश्चन मिलता है कि एक रूट दिया होता है, दूसरा रूट हमको निकालना पड़ता है, राइट, तो हम लोग उस टाइम क्या करेंगे? ओके, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले काम आती है उसमें। इफ समथिंग योर क्वेश्चन एग्जांपल 2 इज गिवन टू यू, b माइनस सी का होल स्क्वायर, नहीं चलो होल स्क्वायर नॉट, एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का कुछ नहीं, एक्स ए माइनस बी इक्वल्स टू 0।
ठीक है। तो अभी तुमको बोलेगा कि फाइंड द रूट्स। अभी वन ट्रेडिशनल मेथड इज कि यू फाइंड प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर इसको करो तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी, ठीक है। लेकिन अनदर मेथड, अभी सिमेट्रिकल हमको कैसे देखना है? सिमेट्रिकल ये मेथड दैट्स गोइंग टू बी फॉलोड व्हेन इफ you do the sum b minus c plus c minus a plus a minus b, सब कैंसिल हो रहा है, राइट, जीरो आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे सिमेट्रिकल क्वेश्चन दिख जाए, सो व्हाट यू हैव टू डू, दे आर द फॉलोइंग वैल्यूज, या तो x इज इक्वल्स टू 1 डालो, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 डाल के देखो, x इज इक्वल्स टू ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है 2 हो जाता है, फिर -2 हो जाता है, और अगर बहुत रेयर क्वेश्चन हो, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू प्लस हाफ और माइनस हाफ। यही वैल्यूज हमारी होती हैं, इनके अलावा हमारे पे कोई भी वैल्यूज नहीं होती हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल की अगर हम बात करें इन टाइप के क्वेश्चंस। सो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 1, सो योर LHS इज गोइंग टू कम व्हाट, a माइनस बी। हम लोगों ने अभी करके देखा था, बेसिकली मैंने इन सब का कोएफिशिएंट का सम क्यों करा, दिस इज b माइनस सी ना, मैंने इनके कोएफिशिएंट्स का सम क्यों करा, why I have done the sum of their coefficients, क्यों, क्योंकि आई हैव अज्यूम x इज इक्वल्स टू 1, हिट एंड ट्रायल से अज्यूम करा मैंने, तभी मेरा जीरो आया, तो a माइनस बी, पुट x इज इक्वल्स टू 1, a माइनस बी एंड प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a इज जीरो, ठीक है। तो यू हैव गॉट टू नो x इज इक्वल्स टू 1 इज वन रूट, राइट, तो दूसरा रूट निकाल लेंगे। दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, सी इज व्हाट, सी वाज ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ए सी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, या बी माइनस सी 1, तो बीटा की वैल्यू डायरेक्ट डाल देते हैं, अल्फा हमको पता लग गया, अल्फा इज 1, ठीक है, तो बीटा इज व्हाट, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, इतना मिल गया हमको। अब जो अगर इतना मिल गया, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट समथिंग फ्रॉम इक्वेशन, कुछ भी हम कुछ भी निकाल सकते हैं ऐसे, बीटा की हमें दोनों रूट सब पता लग गए, वन रूट इज 1 एंड अदर रूट इज दिस, राइट। ऐसे ही मतलब इन द सिमिलर मैनर द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल नंबर 3, राइट, a is b minus c का होल x स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, हिट एंड ट्राई। अब ये सिमिलर लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, x इज इक्वल्स टू 1 डालेंगे सबसे पहले तो हमको ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इफ यू विल सॉल्व इट 0 तुमको मिल जाएगा। सो यू गॉट टू नो कि वन रूट इज 1, वन रूट इज 1, अगर एक रूट हमारा 1 है तो ऑब्वियसली फाइन वी कैन इजीली फाइंड अदर रूट एज वेल, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी बी ए माइनस बी अपॉन ए इज ए बी माइनस सी, तो यहाँ पे 1 रखेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा विल बी सी बी ए माइनस बी एंड ए बी माइनस सी, ठीक है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सो इन द सिमिलर वे वी गेट सो मेनी क्वेश्चन, तो हम लोग उसको मतलब आराम से कर सकते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू एनी मच, ओके, ठीक है, दैट इज क्वाइट फाइन। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 4, मतलब इन्हीं क्वेश्चन से यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, आई बेट, बिकॉज डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे ये सारे, ठीक है। Concept I have told you, questions in itself in the video related to your very PYQs, ठीक है, एंड उसके बाद भी एक क्वेश्चन सेशन होता है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी पढ़ाया था, तो या आई एम डेट श्योर कि इसके बाद यू डोंट नीड एनीथिंग, राइट, ओके, चलो लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 4. Our example number 4 says
Example number 4 says if roots, when I'm writing the question, just I wish कि you skip the questions. ठीक है, सीधे मतलब फाइनल एंडिंग जहाँ क्वेश्चन लिख दी है वहाँ से आप देखें, या 2x की स्पीड में यहाँ देख लिया करें. ठीक है. C a minus b equals to 0 are equal, then a b c are in. आर इन मतलब किस वे में है ये, एच पी, जी पी, ए पी. सिंस आई हैव टोल्ड यू एच पी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, तो वही सब चीज़ें बताना है हमको. कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले यू हैव टू फाइंड, एक तो ट्रेडिशनल मेथड इज कि डी इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, इक्वल रूट्स दे रखे हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 है हमारा. ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. Yeah, this is how you are going to solve this traditional method, and then you need to get the values. उसके रूट्स निकालेंगे आप, पता लगाएंगे. ठीक है, एक तो ये मेथड है. अदर मेथड इज by observation. Now how is your observation going to work? Okay, observation is hit and try. In this question, ऐसे क्वेश्चन में इक्वल ये सब जो तामझाम दिया होता है, वन रूट इज x इज इक्वल्स टू 1. ट्राई करके देखें. ठीक है, तो देखेंगे आप कि ये सब कट जाएगा. ठीक है, अभी कट जाएगा तो एक रूट हमको पता लग गया 0 के बराबर आ गया है वो, तो फिर हमको LHS RHS के इक्वल हो गया, हमको पता लग गया वन रूट इज x इक्वल्स टू 1. सो अदर इज अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए. आई एम राइटिंग डायरेक्टली, किसी को कोई दिक्कत शायद ना हो, इतना कराती हूँ. b माइनस सी इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो उसको इधर को इधर ले जाते हैं बस. That is how we are going to deal. C minus B minus C is equals to AB minus AC. Yeah, अंदर मल्टीप्लाई कर जाके C को इधर ले आते हैं. 2AC is equals to BC plus AB, right? So 2AC equals to BC plus AB. BC plus AB ना, AB. Okay, 2AC equals to B common C plus A. I'm sorry, C plus A, and here you get the result. I'm writing upside, जगह है तो इसे. 2AC equals to B equals to 2AC upon C plus A. ये रिजल्ट हमको मिला. दिस इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब ट्वाइस ऑफ AC अपॉन सम ऑफ दैट C plus A कोफिशिएंट्स इज अवर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. B की वैल्यू होती है बेसिकली. ठीक है, A और C जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक हमारी इक्वेशन है. सो इन दोनों का ट्वाइस सम, ट्वाइस मल्टीप्लाई. ठीक है, अपॉन सम ऑफ A प्लस C इज योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, ओके, यस, चलो, दैट इज HP इज आवर आंसर. सो दिस वाज लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चन. हमने वो सारी बातें भी कर ली हैं. ठीक है, ओके. Now let's talk some more things. Okay, I've even not taught you wavy curve and all. ठीक है, तो वो भी हमें डिस्कस करना है, एक लेक्चर में हो जाएगा. चलो, that's going to be one lecture. Just a minute. Okay, yeah. Actually, I need to charge the laptop. So yeah, some standard problems.
standard problems. So what are some standard problems? Standard problems के लिए for a quadratic equation, जैसे पहली बात तो तुम लोगों को you have to remember some of the angles. Angles कौन से? Learn it anyhow because that's going to be very helpful in your 11th 12th anywhere, right? Sine 18 degree is root 5 minus 1 upon 4. Cos 36 degree is root 5 plus 1 upon 4. Your tan 22.5 degree is very important, root 2 minus 1. Sine 15 degree, as you know, very important, that is root 6 minus root 2 upon 4. And your cos 15 degree is another important thing, that is your, इसको simplify भी हम और भी कर सकते हैं, but I'll leave it. Yeah, root 6 plus root 2 upon 4. Yeah, so let me make you remind again. Sin it, repeat with me. Sin 18 degree is root 5 minus 1 upon 4. Cos 36 is root you see 18 to the 36. Yeah, so in this manner you can learn sin 18 root 5 minus 1 upon 4. Cos 36 is root 5 plus 1 upon 4, and tan 22.5 is root 2 minus 1. That's something we have to learn. The sin 50 is root 6 minus root 2 upon 4, and that is root 6 plus root 2 upon 4. Okay, so we are going to learn. So form a quadratic equation. Form a quadratic equation whose one root is cos 36 degree. अभी देखो, you know cos 36 degree is what? Cos 36 degree I have recently told you is 1 plus, नहीं cos 36 हाँ पढ़ लिया हमने, 1 plus root 5 upon 4, ये होता है हमारा cos 36 degree. तो if you got to know one root, जिसका एक रूट हमको ये बता रखा है, तो अदर रूट अभी इरेशनल दिख रहा है तुमको, तो अदर रूट विल बी, अदर रूट इज लाइक क्वाइट फैमिलियर, अदर रूट विल बी 1 minus root, अदर रूट 1 minus root 5 upon 4. इजी. या अभी हमको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए. या सो सम ऑफ रूट, तो अभी सम ऑफ माइनस बी अपॉन ए होता है, ये तो हमको पता है. सम ऑफ रूट हमको मतलब रूट्स पता है, तो हम इनका सम कर देते हैं. तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 एंड 1 माइनस रूट 5 अपॉन 4, राइट. एलसीएम लेंगे हम, 4 कॉमन है, तो ये 1 से बेसिकली हमारा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा. दिस इज माइनस बी अपॉन ए, and this is going to be minus. Okay, yeah, this is, oh just a minute, it went wrong. Okay, sorry. This is 1 plus root 5 upon 4 plus 1 minus root 5 upon 4. So I need to switch these lines. That's why it create issues. Okay, is equals to your what? This is 1 plus this will get 1 plus 1 is going to be your 2, and 2 upon 4 is 1 upon 2. This is how it's going to be, 1 upon 2. ये हमको मिल गया, right? सही है, इट्स इजी, सही है, इजीली अंडरस्टूड भी है ये बात हमारी. अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की बात करें हम, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 एंड 1 माइनस रूट 5 अपॉन 4. तो ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये रूट 5 हो जाएगा, 1 माइनस 4 ये हमारा हो जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई कराओगे, दैट्स गोइंग टू बी माइनस 1 अपॉन 4. ये हमको बी अपॉन ए मिल गया, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, एंड ये हमें सी अपॉन ए, ठीक है. तो अभी इतना तुमको अगर मिल गया, तो नाउ यू कैन इजीली फ्रेम द इक्वेशन. ये यहाँ पे माइनस नहीं लगाया मैं, या
ठीक है. Now you are going to easily frame the equation. Equation is going to be what? X square minus sum of roots प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. यही होता है फॉर्मूला. अगर नहीं किसको पता है तो अभी दिमाग में रखना कि ये जो होता है दैट इज सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट एज यू आर गोइंग टू बी माइनस 1/4. ठीक है. सो दिस इज इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई कराओगे 4 इज गोइंग टू बी योर लाइक यहाँ पे 4 अगर तुम ले जाओगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x एंड दिस इज योर 1 इक्वल्स टू 0. सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना. इजी, वेरी इजी. ठीक है. मतलब नथिंग टू वरी अबाउट दीज थिंग्स. इजी हैं ये सारी चीज़ें बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो हम लोगों ने इतना जान लिया. अभी लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली सिमेट्रिक फंक्शन का क्या करेंगे हम लोग. अभी सिमेट्रिक हमको एक फंक्शन दे रखा है. सिमेट्रिक फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे. सबसे पहली बात तो हम लोग थोड़ी बातें ध्यान रख लेते हैं. थोड़ी बातों में क्या याद रख लेते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. मतलब ये आइडेंटिटी तुमको याद रखना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो इनको तुम लोग भूल के भी मत भूलना. एंड मॉड अल्फा माइनस बीटा इज योर व्हाट, योर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. ये कहाँ से आया भाई. सम ऑफ यू माइट हैव सो मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. चलो ऊपर वाला तो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. अगर नहीं तो आई टेल यू दिस वीडियो ओनली. तो कैसे पहला वाला अगर हम केस 1 पहले वाले पॉइंट की बात करें इनको खोलने का मतलब इट मेक्स कैलकुलेशन इजी. ठीक है. तो इनको सबको तुमको याद रखना पड़ेगा इफ यू हैव टू मेक इट वेरी क्विक इन मैथ्स. तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज योर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. सो यू कैन सी इसकी वैल्यू हमने निकाल ली यानी 10 को इधर करा तो यू गेट दिस राइट. बात दूसरी की करते हैं. मॉड अल्फा माइनस बीटा का मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव होगा. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्क्वायरिंग अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. क्या मिलेगा यहाँ से हमको. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ठीक है. इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी व्हाट, इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं ऊपर से ही जस्ट तुम्हारे. ठीक है. तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 अल्फा बीटा. नहीं प्लस 2 अल्फा बीटा. हाँ ठीक है ठीक है. एंड गड़बड़ हो गया क्या. अल्फा स्क्वायर प्लस इसको हम यहाँ पे ले गए प्लस 2 अल्फा बीटा हो गया हमारा. एंड दिस इज योर ऑलरेडी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज ओके सही है प्लस 2 अल्फा बीटा एंड दिस इज माइनस 2 अल्फा बीटा. ठीक है. अभी यू आर टेकिंग इफ माइनस कॉमन. ठीक है. यहाँ से अगर तुम कॉमन लेते हो नेगेटिव सो दिस इज योर व्हाट, कॉमन लेके क्या मिलेगा हमको. you can see we are getting alpha minus beta का whole square as alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta plus 2 alpha beta that is your 4 alpha beta. alpha plus beta का whole square is equals to minus 4 alpha beta. ठीक है. अभी यहाँ से your कहानी is going to be very easy. that is alpha minus beta का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड हो जाएगा. अब स्क्वायर हटता है तो यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथ्स एंड नाउ यू आर इन 11 तो इसकी बात तो तुमको याद रखनी पड़ेगी. स्क्वायर डायरेक्ट नहीं हटता, मॉड आएगा. मैग्नीट्यूड मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है. तो मॉड आएगा एंड दैट इज यू आर गोइंग टू बी रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन अपसाइड. ठीक है. ओके. अभी यहाँ से भी खेल खेल सकते हैं हम लोग. क्या कर सकते हैं, चलो लेट्स डिस्कस. इसमें भी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन लाइक अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए.
तो यहाँ पे स्क्वायर है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड यहाँ से माइनस 4 सी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा सी अपॉन ए, तो सी ए हो जाएगा। तो यहाँ से गेट की क्या मिल रहा है हमको, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन मॉड ए मिल रहा है हमको ये। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन मॉड ए इफ अल्फा माइनस बीटा इज योर काइंड ऑफ रूट्स, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। नहीं भी है तो बना सकते हैं हम इसको, हमको तो फाइनल टच भी मिल चुका है, तब तो आराम से बना सकते हैं। तो ऐसा अगर मिलेगा तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाएगी और हमारे सॉल्यूशंस भी बड़े आराम से आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें आई गेस यू विल डू, एंड आई होप यू डू द बेस्ट इन योर स्टडीज। एक होमवर्क क्वेश्चन दे के जाते हैं इसी पे, ठीक है। अल्फा क्वेश्चन इज अल्फा 5 plus beta, I guess 7th example it is, so you put the heading according to number, alpha square plus beta square and alpha cube minus plus beta cube minus alpha square beta square alpha plus beta, ये तुमको करना है, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दे रखी है, ओके चलो लेट्स चेंज द क्वेश्चन, थोड़ा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्वेश्चन ये बना है। बेसिक क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। सो फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस अल्फा। तो ये क्वेश्चन करना, उधर को इधर करना, इधर को उधर करना, एक आइडेंटिटी खोलना, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा हिंट दे के जाता हूँ मैं, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा बीटा एंड योर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये होता है। अब इसमें रखना वैल्यूज, यू विल गेट द फाइनल आंसर, बहुत इजी है, ठीक है। तो हमको फाइनली विल गेट द फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा ये भी निकालना है इसी क्वेश्चन में, और इसी क्वेश्चन में फाइंड अल्फा 5 प्लस बीटा 5, ये भी चलो ये भी करना, ठीक है। इसी क्वेश्चन में यू डू दिस पार्ट ऑल्सो, इसी क्वेश्चन में इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग। अल्फा 5 कैसे टूटेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसे टूटेगा, कैसे भी करके अब तो इसको तोड़ना है, तो तुम लोगों को रूट्स निकालने हैं इसके, यू कैन डू, आई कैन लाइक अश्योर दिस मच इफ यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट। नहीं भी आएगा कमेंट में, आई वैसे भी नेक्स्ट वीडियो तो क्वेश्चंस वाला ही होना वाला है, इसके जितने भी क्वेश्चंस मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के। 2 वीडियो जो अभी आई है, नेचर ऑफ रूट्स और रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स, इन दोनों के टॉपिक के क्वेश्चन यू विल गेट इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक 10 to 12%। Okay, so bye, and yeah, subscribe our channel for latest notification related to short trick steps, study material, and do follow our Telegram channel, that is t.me/examstore. Okay, so examstore.com, bringing excellence for students.